Or Sarosh, how was your exhibition? Exhibition was fantastic. I had a great time. Nahin, thank you so much. It was fantastic. It was a great experience. I was in the US. वहाँ पे spring summer collection. Oh, really? I showed it, and it was a great response. I was really, really happy. But yeah, I think I should show something here too, very soon. Yeah. Oh. I need to see these guys too. I'll Yeah. catch you in a bit. Hey. Hello. How you doing? Good. Nice party. Acha. So what else? Hello, Nisha. Hi. This is Sarosh, and Sarosh, this is Nisha. Guys, you just give me 5 minutes. I'll come back, right? Okay. Sure. Amir might have told you my name. Yeah, you told me your name, Nisha, right? उसने पूरा नाम नहीं बताया क्या? I'm sorry, I don't remember. In that case, let me introduce myself. My name is Nisha Isfahani. Mr. Abid Isfahani मेरे father का नाम है and हम पूरी country में hotel chains own करते हैं. That's wonderful. It is. And you know, because of this, मैं अपने father से complain नहीं करती कि उनके पास मेरे लिए time ही नहीं होता. And what about your mother? वो भी business run करती है? नहीं, I don't know about that. Actually, 5 साल पहले मेरे parents का divorce हो गया. I'm really sorry to hear that. It's all right. You don't have to be. अपने बारे में कुछ बताओ. What do you want to know? आपके सामने बैठा हूँ. Is there anything specific? Tell me about your family. I have a very small family. My mother and Sona. Zona? Yeah, my younger sister, मेरी छोटी बहन. अच्छा, I see. What about your girlfriend? क्या नाम है उसका? Girlfriend. Actually, मैं लोगों में discriminate नहीं करता. दोस्त तो दोस्त होते हैं. लड़का हो या लड़की, क्या फर्क पड़ता है? If I'm not wrong, it means you're still single. बिल्कुल. अपने लाइफ पार्टनर में कौन सी क्वालिटी देखना पसंद करोगे? Intelligence. Intelligence. Strange. Why strange? You know, because guys, they go for style and beauty. मेरा point of view इस बारे में थोड़ा सा मुख्तलिफ है. I don't think like that. और आपका point of view इस हवाले से कैसे different है? Give me an example. Beauty and style वक्त के साथ साथ कम हो जाता है. Style पुराना हो जाता है. Beauty fade out हो जाती है. But intelligence वक्त के साथ साथ मजीद बढ़ती है. And I think those kind of people, they go for knowledge and experience. That's why. Anyway, I'm just getting this call. I have to attend it. Excuse me. शक्ल देखी थी आपने उनकी? मुझे तो कोई बहुत ही फनी आंटी लग रही थी. ये कबाब आपने बनाए हैं बेटा? आई स्वेयर अगर वो मेरे हाथ के कबाब खा लेती ना तो बेहोशी हो जाती. आई विश उनको पता होता कि मैं किस कदर भुअड़ और बदसलीका हूँ. अरे बेटा, वैसी भी कोई बात नहीं है. हाँ, जब काम करने लगोगी ना तो सब सीख जाओगी. यही तो मसला है ताईजान. ऑफिस जाके काम करने को दिल ही नहीं करता है. हाँ बेटा, इंसान ऑफिस से थका आ रहा आता है. अरे छुट्टी का तो दिन होता है ना कोई डिश बनाने की कोशिश किया करो. जी ताई अम्मा, फिलहाल तो मुझे नींद आ रही है. कल फिर ऑफिस जाना है. गुड नाइट. अल्लाह हाफिज. चल बेटा. बेटा बहुत रात हो गई, अब तुम भी सो जाओ. मुझे भी बहुत नींद आ रही है. जी मैंने फाइनल स्केच बना लिया. बाकी if you give me the measurements then probably we can try go for the fittings probably. We can try it. Yeah. अच्छा ठीक है. I'm somewhere. I'll speak to you later. Thank you. यार आप यहाँ क्या कर रहे हो? She's asking about you.
एक क्लाइंट की कॉल आई थी, आई हैड टू अटेंड दैट। अच्छा, तुम्हारी कॉल खत्म हो गई तो अब चले अंदर, वरना वो मुझे मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? यार क्योंकि ये पार्टी उसने तुम्हारे ऑनर में दी है। बाय द वे, निशा कैसी लगी तुम्हें? She's alright. Personality with attitude, arrogance without intelligence, not my scene, you know it. लेकिन उसने तुम्हें तो कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया ना। हाँ, मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखाई, लेकिन उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा है that she thinks that she's the princess of the world. लेकिन इस टाइम उसकी दुनिया के प्रिंस आप हैं। अंदर चलें? बकवास करने की जरूरत नहीं है। Actually, you know what? तू जा, मैं एक important call है, please. Just give me like 5 minutes. कम ऑन यार। अरे बता तो, लड़के वाले कैसे थे? बस ठीक थे अम्मी, मुनासिब से ही थे। और भी तो कुछ बताओ। अब मतलब उनका मूड कैसा था? तहजीब के बारे में क्या कहो? देखने में तो खुश लग रहे थे। अब उम्मीद है कि कुछ खुशखबरी होगी। तो क्या उन्होंने पसंद कर लिया तहजीब को? बहुत मुमकिन है कि ऐसे ही हो। अच्छा, और लड़का कैसा था? लड़का कुछ बड़ी उम्र का लग रहा था अम्मी, और शक्ल से भी बस एवी सही था। हमारी तहजीब बहुत अच्छी है उससे। सच्ची बताऊं, मुझे तो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती पागल लड़की, सिर्फ ये देखा जाता है कि अपने बीवी बच्चों का बोझ उठा सकता है कि नहीं। लड़का करता क्या है? सराफा बाजार में दुकानें हैं उनकी, मेरे ख्याल से सुनहार है। अच्छा, सुनहार है? अम्मी, आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे मैंने बोला हो कि वो कोई इंजीनियर है या कोई सर्जन है। अरे ये सर्जन और इंजीनियर जो है ना, वो क्या बेचते हैं सुनार के आगे? ये सुनार लोग जो होते हैं ना, कभी घाटे में नहीं रहते। 100% मुनाफा ही होता है इनको, इनके कारोबार में। नफा नुकसान मुझे नहीं पता अम्मी, मुझे ये पता है कि लड़का बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। अरे फिर वही बात, डिग्री को क्या गले में टांग कर घूमना है? अच्छा नहीं लगा। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। मम्मी कहाँ है? बेगम साहिबा किसी पार्टी में गई साहब। और जुनाश बीबी? वो भी घर पे नहीं है, अपनी किसी सहेली की शादी में गई है। सर आप कहें तो खाना लगा दूं? नहीं, मैं बाहर से खाना खा कर आया। ठीक है सर। ये कबाब आपने बनाए बेटा? बहुत लजीज है। नहीं, मैंने नहीं बनाई, ये तहजीब ने बनाया। और तुम क्या करती हो? मैं सिर्फ जॉब करती हूँ और बस ये घर के काम, खाने पकाने, मुझे कुछ नहीं आता इनमें से। हाँ, तुम्हें देख के लगता है। अम्मा, अम्मा क्या सोच रही हैं आप? बेटा एक बात कहनी थी तुमसे। बोले। बेटा सहर को जिद करके लड़के वालों के सामने आने की क्या जरूरत थी? जब वो मना कर रही थी तो रहने देती। अम्मा क्या फर्क पड़ता है अगर सहर उनके सामने आ गई? या फिर मैं ये समझूं कि बाकी सबकी तरह आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुझ में कोई कमी है? हर किस नहीं, मैं भला ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ बेटा? तो फिर अल्लाह पर तवक्कल रखें अम्मा, खुदा बहुत रहीम है। और फिर मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि लोग अपना सोचने का तरीका बदलते हैं। सादगी की चादर ओढ़े मुझ जैसी और कई लड़कियों की सहन में उतर कर देखें। अच्छा अम्मा, आप दूध के साथ अपनी दवा पी लें, फिर मुझे याद नहीं रहा तो आप भी भूल जाएंगे। अच्छा। निशा,
हाँ निशा, is everything fine? Hi. Yeah, everything is fine. I just wanted to ask if you reached home. क्या तुम घर safely पहुंच गए? हंस क्यों रहे हो तुम? नहीं वैसे ही। नॉर्मली ये सवाल लड़के लड़कियों से पूछते हैं, बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं बस अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचा। Okay. Can I ask you a question? Yeah, sure. Can I be your friend? Yeah, of course. ये भी कोई कहने वाली बात है। Amir is a really close friend of mine and you are his friend. तो उस हवाले से हम लोग भी दोस्त हुए। Okay. Okay, bye. So we're confident. एक जरूरी बात करनी थी आपसे। तुम्हें अभी हर बात मेरे खाना खाने के वक्त याद आती है। बोलो। मैं वो कह रही थी कि हमारी फैमिली है ही कितनी बड़ी, गिनती के 4 लोग हैं हम। हमारा तो गुजारा कोई छोटी जगह में भी हो सकता है। अब क्यों ना हम अपना ये घर किराए पर दे दें। इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, कब अकल आएगी तुम्हें? मत भूलो, इस मकान में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। भाईजान की वफात के बाद इस सारी जायदाद पर तहजीब का हक है, वही मालिक है इस घर की। अरे तो हम कौन सा उनका घर छीन रहे हैं? जरा सोचो, बानो भाभी और तहजीब दिल बड़ा ना करती तो आज हमारे सरों पर छत भी ना होती। तो क्या करते हम दोनों? कहां ले जाते अपने बच्चों को? बजाय इसके कि सब्र शुक्र से रहो, हर वक्त अपने शिकायतों की पटारी खोले बैठी रहती हो और बेवकूफाना बातें सोचती रहती हो। तो फिर और क्या करूं? इतनी कम आमदनी है आपकी, गुजारा ही कहां होता है। जब औरत में सलीका ना हो तो उसे खजाना भी कम लगता है। बेकार की बातें सोचने के बजाय बानो भाभी से कुछ सलीका सीख लो। देखो कितनी अच्छी तरबियत की उन्होंने तहजीब की। बाज आई मैं ऐसी अक्ल से। मैं नहीं चाहती कि शहर का भी तहजीब की तरह हिसाब हो। माँ हूं ना, इसलिए बहलाई चाहती हूँ अपनी बेटी की। ये भलाई नहीं है, बुराई है उसके साथ। आजकल का वो दौर नहीं, अब मॉडर्न जमाने के लड़के हैं जी, मॉडर्न लड़कियां ही पसंद करते हैं। तुम नहीं समझोगी। तुमने हमेशा अपनी गलत बात को बेबुनियाद दलाइल से सही साबित करने की कोशिश की है। तुमसे बहस करना बेकार है। और हाँ, अपने लड़के को कह देना वक्त से दुकान पे आ जाया करे और संभाले दुकान। आप तो हमेशा बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं। जब आपको मालूम है कि उसको दुकान चलाने में कोई शौक नहीं है तो छोड़ दें उसका पीछा। शौक नहीं है तो पैदा करे शौक, क्योंकि आगे उसी ने संभालना है ये काम। Fantastic here, this super over in this crunch match for Australia. They need to win this to take it to a decider. Watson's ready now to face Umagul. हेलो। हेलो। क्या हुआ, आज बहुत देर हो गई आपको? हाँ, एक बिजनेस डिनर था। तुम बता, तुम कब आए? मुझे बस अभी थोड़ी देर हुई थी। ना आप थी ना जोना थी। क्या हुआ, कुछ थकी थकी सी लग रही है? ओके? हाँ, थक तो गई हूँ। मुझे लगता है मेरा एनर्जी लेवल कुछ कम हो रहा है। तुम्हारे डैड के बाद 10 साल से मैं अकेले ये बिजनेस चला रही हूँ। सरोज, आई थिंक यू शुड टेक इट ओवर नाउ। मैं मम्मी, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानती हैं that I run my own business and you know my field is completely different. मुझे नहीं लगता कि मैं आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस संभाल सकूंगा। बिजनेस तो बिजनेस है, इसे रन करने के लिए आईक्यू की जरूरत होती है और वो तुम्हारे में बहुत है। और तुम्हें एक ना एक दिन तो ये बिजनेस संभालनी है ना। और अब मेरी उम्र भी होती जा रही है, मुझसे ये स्ट्रेस, ये प्रेशर नहीं लिया जाता, हिम्मत ही नहीं है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट, जोना भी है, एंड सेकेंडली आपको लगता है मैं आपको इतनी जल्दी रिटायर होने दूंगा?
Look at yourself. My mother is still so young. ज्यादा बटरिंग नहीं करो, अच्छा? और वैसे भी जूना बहुत छोटी है और मैं बहुत थक गई हूँ ये ऑफिस चलाते चलाते। तुम्हें बस करना है। You need to relax. I'm always here. Look at me. Trust me, I'm always here for you. I know, बेटा। I think you should get some rest. I think so too. Hello. Good morning. How are you? Who's this? अभी कल ही तो मुझसे फ्रेंडशिप की थी, इतनी जल्दी भूल गए। This is Nisha. Hi, Nisha. How are you? I'm doing good. लगता है कि तुम अभी तक सो रहे हो। माना कि आज संडे है, मगर फिर भी बाकी का दिन सोते हुए गुजारने से बेहतर आइडिया है मेरे पास। Really? क्या आइडिया है? Let's meet up. आज? I'm so sorry, Nisha. Not today. Oh, come on, Sarosh. Please don't do this. अभी कल ही तुमने मुझे अपना फ्रेंड कहा है, and I really want to celebrate this friendship. मैं तुम्हारा पूल साइड कैफे पे इंतजार करूंगी आज 5 बजे। See you then. Take care. Bye. Yeah, but Nisha, hello. God, how stupid is that? Friendship celebrate करनी है। कितनी बुरी बात है फरहान। फिर माफी भी तो मांगी ना। और उसने माफ कर दिया तुम्हें? तो जी हाँ, तभी तो अपना विजिटिंग कार्ड दिया मुझे, ये देखें। और मैंने तो उसको बता दिया था कि मैं एक फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा फैशन फोटोग्राफर। और मैं तो उसे बातों बातों में ये भी बता दिया कि वो कितनी खूबसूरत है। पर अफसोस ये नहीं बता सका कि जब वो कैमरे की आंख से दिखती है तो किस कदर हसीन नजर आती है, बिल्कुल एक मॉडल की तरह। बिलीव मी तहजीब बाजी, कैमरा लव्स हर फेस। बस एक बार वो मेरे साथ फोटोशूट करवाने पर राजी हो जाए तो वो फैशन की दुनिया में मेरा पहला कदम होगा, और फिर उसके बाद मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं अभी सोच ही रही थी कि तुम्हारा फोन नहीं आया कि तुम्हारी कॉल आ गई। बताओ, सब खैरियत तो है ना? हाँ बेगम साहिबा, अल्लाह के करम से सब खैर है। अच्छा, तो ये बताओ कि तहजीब पसंद आ गई उन्हें? बस शायद आप कोई अच्छी खबर सुनाओ। खबर तो अच्छी है, पर बात यूं है कि आप समझ रही हैं ना मेरी बात? हाँ, मैं समझ गई हूँ। मैं बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। Hey, I'm glad that you've come. Thank you. Pleasure's all mine. I can't understand कि तुम हमारी फ्रेंडशिप क्यों सेलिब्रेट करना चाहती हो। There is nothing special in it. Because मुझे कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए एक रीजन चाहिए होता है, और इस दफा हमारी फ्रेंडशिप एक रीजन बन गई। मैंने देखा अपने कुछ फ्रेंड्स को, अपने कुछ लड़के फ्रेंड्स को, वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। क्या? यही फ्रेंडशिप सेलिब्रेट, लेकिन वो अपनी किसी खास गर्लफ्रेंड के लिए करता है। Oh come on, I think कि हमें इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल जाना चाहिए। और वैसे भी
कौन कहता है कि एक लड़की वो सब कुछ नहीं कर सकती जो कि एक लड़का कर सकता? You're getting me completely wrong. I said usually लड़के ऐसा करते हैं, not every time. Anyway, लड़कियां भी ऐसा करती हैं. In fact, nowadays, girls they even propose guys. I really hope कि इस वक्त तुम्हारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, because I'm only ready for the friendship. Okay. Please come. Let's go. दिमाग ठीक है उन लोगों का? ऐसा कैसे कह सकते हैं वो लोग? लगता है आजकल ना लोगों का कोई दीन ईमान ही नहीं रह गया। और ताई माँ, आपने सुनी क्यों उसकी घटिया बातें? ये सहर बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भला? अरे भाई, उनका पूरा हक बनता है वो जिसे चाहे पसंद करें। नहीं ताई अम्मा, आपको ऐसे लोगों का नहीं पता है। जो मुंह में आता है कह देते। कोई तरीका होता है कोई बात करने का? ये क्या बात? तहजीब को देखने आए और मुझे पसंद करके चले गए। मगर बेटा, अब उन्हें जवाब तो देना होगा ना। जवाब? किस बारे में? अरे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहते हैं वो। अम्मी तक तो वो बाद में पहुंचेंगे, पहले मेरे सामने तो आए। आप उन्हें साफ इनकार कर दे और कोई जरूरत नहीं है किसी को उनसे मिलने की। साफ साफ बता दे उन्हें कि मेरी तरफ से इनकार है। बदतमीज, जाहिल कहीं के। है? क्या होगा? कुछ नहीं अम्मी। अरे पता तो चले, किसको बुरा भला कह रही है मेरी बेटी? अम्मी अभी रहने दे, मेरा मूड बहुत खराब। दिमाग खराब है आजकल के लोगों का। अरे अरे, मगर हुआ क्या? कुछ तो बताओ, किस बात पे इतना बिगड़ रही हो लड़की? अजीब पागल लोग हैं अम्मी। तहजीब का रिश्ता देखने के लिए आए थे और मुझे पसंद करके चले गए। आप जानती हैं कितना शर्मिंदा होना पड़ा है मुझे तहजीब और ताईजान के आगे। हैं? फरहान, फरहान, क्यों चिल्ला रहे हो? कहाँ है तुम्हारा नालायक बेटा? हैं? सुबह से फोन कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रहा। बदतमीज इंसान। सब खैरियत तो है? उस नालायक के होते हुए कहाँ खैरियत हो सकती है? सारा काम खराब कर दिया। क्या काम खराब कर दिया? जब देखो बच्चे के पीछे पड़े रहते। करतूत तो सुन ले अपने लाडले के। किया क्या है उन्होंने? गुल क्या खिलाया है कल रात शादी में? एक ही लड़की की तस्वीरें खींच खींच के कैमरा भर दिया। टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। बुलाओ उसे। घर पर नहीं है। कहाँ गया है? बता कर नहीं गया मुझे। अरे जा कहाँ रही हो? सर दर्द से फटा जा रहा है, एक कप चाय पिला दो। बस कुछ ना कुछ कर दो। अपनी परेशानी का एहसास है, दूसरों की परेशानी का नहीं। तुम सिर्फ मुझे परेशान कर सकती हो नहीं सकती। हेलो मम्मी। ओह जनाब, आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आज? क्यों, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता? अरे भाई क्यों नहीं आ सकते? मेरा तो दिल चाहता है तुम रोज ऑफिस आओ और मेरा ये सारा बिजनेस संभाल लो। लेकिन मैं रोज का प्रॉमिस तो नहीं करता, कभी कभार आ जाया करूंगा। मैं भी तो देखूं कि इतना बड़ा बिजनेस आप अकेले कैसे संभालती हैं। That would be my dream come true. Okay, we'll talk about your dreams later. अभी मुझे अच्छी सी कॉफी पिलवा दें। क्यों नहीं, अभी आती है। जी एक कॉफी अच्छी सी भिजवा दें। थैंक यू। सुरुष, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि तुम्हें इस तरह अपने ऑफिस में देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। Really? Yeah? अरे भाभी, मैं तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया। मेरी ही गलती है, मुझे शहर को नीचे भेजना ही नहीं चाहिए था। मैं समझ रही हूँ तहजीब के दिल पर क्या गुजर रही है। अरे नहीं चाची जान, ऐसी कोई भी बात नहीं है। क्या हुआ अगर उन्होंने सहर को पसंद कर लिया?
मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको लड़के और उसके घर वालों से एक दफा मिल लेना चाहिए। अरे रे बेटा, ऐसा मत बोलो। अगर सहर ने सुन लिया ना तो पूरा घर ही सर पे उठा लेगी। अरे कमर जहां, तहजीब बिल्कुल ठीक कह रही है, हम भला क्यों बुरा मानने लगे। चलो अच्छा ही है ना। अरे एक की ना सही तो कम से कम दूसरी बेटी की तो शादी हो जाए ना, वो तो हो जाए अपने घर की। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? सच में आपको कोई इतराज नहीं? अरे कमर जहां, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे भला क्यों एतराज होने लगा। अरे तहजीब हो या सहर, मेरे लिए तो दोनों बेटियां एक ही जैसी है ना। नहीं भाभी, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो सही नहीं लग रहा ये सब। सब ठीक है, अल्लाह का नाम लेके तुम बिस्मिल्लाह करो। हेलो। हेलो। आप लोग जाग रहे हैं अब तक? आप ही का वेट कर रहे थे कि आप आए तो हम लोग साथ डिनर करें। डिनर? मैं बाहर से खाना खा कर आ रहा हूँ। आप लोग मुझे कॉल कर देते, मैं बाहर से डिनर ना करता। चलो खाना मत खाओ, हमें कंपनी तो दे सकते हो ना। हाँ, अगर ऐसी बात है तो व्हाई नॉट, लगवाएं खाना आप। यू मस्ट बी हंग्री। हाँ नॉट मच। ठीक है, आप खाना लगवाएं, क्विकली चेंज एंड कम। ओके। साजदा, अजीब बात करती हो, ना सोचती हो ना समझती हो, बस बोल पड़ती हो। गौर से तो सुने, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बानो भाभी ने खुद मुझसे कहा है कि शहर को लेके मैं आपसे बात करूं। इंतहाई नामुनासिब हरकत होगी कमर जहां, सोचा तो करो। ये रिश्ता तहजीब के लिए आया था, शहर के लिए नहीं। चलो मान लो कल कला को हमारी उनसे बात बन भी जाती है तो कैसा लगेगा तहजीब की जगह शहर को ब्याते वक्त? ना बाबा ना, मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, कम से कम मैं तो ये काम नहीं कर सकता। क्या मुंह दिखाऊंगा दूसरे जहां भाईजान को जाकर? वो जाते वक्त तहजीब की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए थे। भाई, जब बानो भाभी और तहजीब को कोई इतराज नहीं है तो आप इस बात को बिलावजह क्यों बढ़ा रहे हैं और इस मामले में रोड़े क्यों अटका रहे हैं? मैंने आपको कहा है ना, सुना रहे हैं वो लोग। अगर इसी तरह एक एक करके सब अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जाएंगे तो क्या उम्र भर बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? ज्यादा लालच अच्छा नहीं है कमर जहां। अरे बेटियों के रिश्ते तो नसीबों से मिलते हैं। हाँ, यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है कि रिश्ता तहजीब के नहीं शहर के नसीब में हो, तो फिर आप और मैं क्या कर सकते हैं, बताइए तो। बानो भाभी के पहले ही बहुत एहसानात हैं हम पर। रिश्ते वालों से मिलकर तहजीब की जगह शहर की बात कैसे कर सकता हूँ मैं? कुछ होश के नाखून लो कमर जहां, बानो भाभी के सामने सारी उम्र के लिए शर्मिंदा होकर रह जाऊंगा मैं। बताया तो है ना, बानो भाभी को कोई एतराज नहीं है। माफ कर दो मुझे, और जो तुम्हारे दिल में आता है करो। आखिर में करना तुमने वही है जो तुम्हारे दिल में आए। रिक्शा, रिक्शा। एक्सक्यूज मी। आपसे बात कर। जी। कैन आई ड्रॉप यू? नहीं थैंक यू, मैं तो रिक्शे का वेट कर रही थी, मैं चली जाऊंगी, बहुत शुक्रिया। देखिए, आप बैठ जाइए, आप चेहरे से काफी परेशान लग रही हैं। मेरा ख्याल है आप काफी लेट हो गए। मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपकी बस निकल गई है। वैसे आई कैन ड्रॉप यू इजीली। थैंक यू वेरी मच, बट आई थिंक आई कैन मैनेज। देखिए, मैं आपकी बिल्डिंग के सामने वाले ऑफिस में काम करता हूँ। मैंने अक्सर छुट्टी के बाद आपको बस स्टॉप पे खड़ा देखा है।
एक सेकंड. You can check my visiting card. By profession, I'm a banker. आप चाहें तो मेरे ऑफिस में फोन करके पूछ सकती हैं, जो कि आपकी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने. प्लीज. वैसे आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं. नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि आज तो मुझे मेरे बॉस से वार्निंग लेटर मिल ही जाएगा. पिछले 3 दिन से लेट पहुंच रही हूँ मैं ऑफिस. वैसे एक बात कहूँ, ये जो बॉसेस होते हैं ना, इनकी तो आदत होती है वार्निंग देने की. सो डोंट टेक इट सीरियसली. बल्कि मैनेजर होने के नाते मैं कई बार कई लोगों को वार्निंग दे चुका हूँ. अच्छा, फिर तो क्या वो आज तक लेट आते हैं? अरे आप हंस रही हैं, मैं सीरियस कह रहा हूँ. कुछ लोगों को आदत होती है हर जगह लेट पहुंचने. वो आपने सुना होगा ना, ओल्ड हैबिट डाई हार्ड. जरूरी तो नहीं है, कभी कभी मजबूरी भी हो सकती है. कोई जान के भला ऐसे क्यों करेगा? हाँ, बातों में पता ही नहीं चला और आपका ऑफिस आ गया. वैसे मेरा नाम मुस्तफा है. आप अपना नाम नहीं बताएंगे? सहर. सहर. ओके मिस सहर, इट वाज रियली नाइस मीटिंग विद यू. सेम हियर and thank you very much. Have a good day. हेलो. गुड मॉर्निंग. तुम उठ गए क्या? मैं तो समझी कि तुम अभी तक सो रहे होगे. हाँ, बस ऑफिस जा रहा था. तुम मुझे बताओ कि सुबह सुबह कॉल किया है, खैरियत? हाँ, खैरियत ही है. मैं बस सिर्फ चेक कर रही थी. क्या? यही कि कहीं मेरी तरह जनाब की भी कहीं नींदें तो नहीं उड़ गई. वैसे तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. Really? अब मैं इसे कॉम्प्लीमेंट समझूं या क्रिटिसिज्म? वेट, जो तुम्हें अच्छा लगता है समझ लो. Okay. Okay, listen, I was just leaving for the office. I'll speak to you later. Okay? Bye. मैं आपकी बिल्डिंग के सामने वाले ऑफिस में काम करता हूँ. बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर. क्या हो रहा है सर? देख नहीं रहे, काम कर रही हूँ. काम? कौन सा काम कर रही हो, वो भी इतने गौर से? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? अरे मैं तो अपना ही काम कर रहा हूं, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है काम पर. कितना फजूल बोलते हो ना तुम. अब जाओ, जाके अपना काम करो और मुझे भी करने दो. ऑलराइट.
अम्मा दाल बना दूं आपके? नहीं बेटा, जरूरत नहीं। क्या बात है अम्मा, आप मुझसे नाराज हैं? नाराजगी? किस बात की नाराजगी? तो फिर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है? आपको कोई शिकायत है मुझसे? नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो फिर आप इतनी उदास क्यों हैं? बेटा अगर कुछ कहो तुमसे तो मानोगी? लेकिन अम्मा ऐसी कौन सी बात है? नहीं, पहले वादा करो, मैं जो कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। अच्छा चले, मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर कोशिश करूंगी। तो फिर ऐसा करो ना बेटा कि जल्दी से कोई नौकरी तलाश कर लो। नौकरी? लेकिन अम्मा आपको तो पता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नौकरी करने में। अगर करनी ही होती तो डिग्री लेते ही अप्लाई कर देती। तुमने अभी मुझसे वादा किया है, तुम मना नहीं करोगी। लेकिन मैंने कहा ना, मैं कुछ और नहीं सुनूंगी अब। लगता है चची जान की बातों को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया आपने। जो भी हो, देखो तहसीब, तुम मुझसे वादा कर चुकी हो और तुम अगर चाहती हो ना कि मैं खुश रहूं तो बेटा इसी में मेरी खुशी है। अच्छा चले, आपकी खुशी के लिए अप्लाई कर दूंगी, लेकिन जॉब मिलेगी या नहीं ये नहीं कह सकती मैं। अरे क्यों नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह जरूर मिलेगी बेटा।